सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चन विच आर स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर बिजनेस एनालिस्ट। तो बिजनेस एनालिस्ट रोल ये ऐसा रोल है कि जो इन बिटवीन टेक्निकल इंजीनियर्स एंड द क्लाइंट इसके बीच में रहता है और उनको भी एसक्यूएल का नॉलेज हो तो वो अच्छा ही है। दैट इज अ प्लस फॉर बिजनेस एनालिस्ट। एंड इन मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर बिजनेस एनालिस्ट एसक्यूएल के क्वेश्चंस यूज होते हैं। ये जॉब जॉब डिस्क्रिप्शन में एसक्यूएल का मीन्स एसक्यूएल का एक्सपर्ट होना जरूरी रहता है। So that's why I have given this SQL questions for business analyst, specifically designed for business analyst. But ये interview question business analyst के लिए भी important है, but also freshers या experienced SQL developers भी देखेंगे तो उनका भी knowledge ही बढ़ेगा। So ये उनके लिए भी important है। So you can go ahead and check the questions. Okay. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एसक्यूएल और हाउ इट इज बेनिफिशियल टू बिजनेस एनालिस्ट। So SQL stands for structured query language. It is especially designed to communicate with a database. SQL, also pronounced as a SQL, is very widely used language in most of the database management system like Oracle, MySQL, PostgreSQL. SQL provides us a simple and efficient way of reading, writing, executing the data from the system. This is one of the SQL interview questions ever asked in every interview. So business analyst के लिए भी कोई अलग नहीं है, SQL का पूछा जाएगा। SQL का जब पूछते हैं कि what is SQL, it is structured query language, it is a database language, it is not a database management system. ये ध्यान में रखना है आपको। बिजनेस एनालिस्ट इज नथिंग बट अ ब्रिज बिटवीन टेक्निकल टीम एंड कस्टमर्स। सो बिजनेस एनालिस्ट का रोल कैसे रहता है? वो रहता है फंक्शनल रोल। जैसे कि जैसे कि समझो एक हेल्थ केयर एप्लीकेशन है। हेल्थ केयर एप्लीकेशन के बारे में बिजनेस एनालिस्ट को एंड टू एंड पता रहना चाहिए। दैट इज हिज रोल एंड ही इज ब्रिज बिटवीन द टेक्निकल टीम एंड कस्टमर। सो उसको कस्टमर से काम लेना पड़ता है, रिक्वायरमेंट लेनी पड़ती है और वो सब रिक्वायरमेंट टेक्निकल टीम को समझानी पड़ती है। ये रोल है बिजनेस एनालिस्ट का। तो उसमें स्किल क्यों इंपॉर्टेंट है? If they know the SQL and database structure which was designed by the technical team, it's easy for them to take the decisions accordingly. Decision making के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको अगर डेटाबेस का डिजाइन पता है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर पता है, तो वो समझा सकते हैं टेक्निकल डेवलपर्स को व्हाट एक्चुअली कस्टमर रिक्वायर्स एंड कस्टमर को जो चाहिए वैसा वो डेवलप करके दे सकते हैं एप्लीकेशन। सो फॉर दैट it is beneficial to have SQL knowledge to the business analyst. Business analyst को sometimes higher management question करती है, उनको सब reports चाहिए रहते हैं जो कि related to that application भी रहते हैं। उस टाइम भी आप business analyst SQL का यूज करके reports fetch कर सकते हैं। तो मैंने देखा है कि business analyst के इंटरव्यू में भी questions SQL के questions पूछे जाते हैं। What is database normalization? Tell me with its advantages. So database normalization क्या है, उसके advantages क्या है? Database normalization ये database डिजाइन की एक टेक्निक है, straightforward way में। Okay. So database normalization is nothing but technique for designing the database in structured way to reduce redundancy and to improve the integrity. These are the words you ये words है आपको याद रखने हैं। It is used to reduce redundancy of a data and it is used to improve the data integrity, data quality. Okay. Following are the advantages of normalization. First is to eliminate the redundant and useless data. Useless data, redundant data remove कर देता है। To reduce the complexity of a data, और normalization use होता है complexity कम करने के लिए to ensure the relationship between the tables as well as data in the tables, to ensure the dependencies and data is logically stored. इसके लिए सब के लिए normalization बहुत important है। What is difference between unique and distinct? ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यूनिक या ये अलग अलग करके भी पूछा जाएगा। What is unique constraint? What is distinct record? ऐसे करके भी पूछा जा सकता है। बट मैंने ये एक ही क्वेश्चन में कवर कर रहा हूं मैं ये सब। There is no difference between unique and distinct keywords apart from one key difference. Unique is applied before insertion and retrieval. So unique ये एक कंस्ट्रेंट है। ये कंस्ट्रेंट कब यूज होता है? जब आप टेबल क्रिएट करते हो या जब आपने टेबल क्रिएट किया है और उसको आपको अप्लाई करना है तो आप ऑल्टर टेबल करते हो, तो यूनिक कंस्ट्रेंट का यूज होता है।
इंसर्शन के पहले या इंसर्शन के बाद आप ऑल्टर करके उसमें डाल सकते हैं, बट वो रिकॉर्ड्स यूनिक रहने चाहिए उस कॉलम के, ऐसा है। इट कंसिस्ट ऑफ नॉन डुप्लीकेट वैल्यूज, यूनिक कंसिस्ट ऑफ नॉन डुप्लीकेट वैल्यूज, उस कॉलम में कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं रहेंगे। इफ यूनिक कंस्ट्रेंट इज गिवन, it does not take the duplicate values. Okay, distinct is used to retrieval with suppressed rows. Okay, as well as suppressed rows means if two rows are same, it will show the single row and non-duplicate row. Therefore distinct is the combination of suppressed duplicate and non-duplicate rows, suppressed duplicate and non-duplicate rows. स्पेसिफाई मतलब क्या, एक मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। समझो, एक कंसीडर करो, एक टेबल है, टेबल नेम का नाम है एम्प्लॉय, उसमें एक कॉलम है एम्प्लॉय नेम, उसमें 3 वैल्यूज है, अमित, अमित और थर्ड इज एक्स वाई जेड। ओके, तो आप जब डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करोगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल, देन वो क्या करेगा, वो फेच करेगा अमित, एक बार फेच करेगा जो कि 2 बार है, और एक्स वाई जेड फेच करेगा, अमित और एक्स वाई जेड। अगर वहां पे यूनिक कंस्ट्रेंट है अप्लाई किया हुआ, तो अमित ये रिकॉर्ड ट्वाइस इंसर्ट ही नहीं हो सकता वहां पे वो कंस्ट्रेंट वायलेशन एरर दे देगा, कंस्ट्रेंट वायलेशन एरर दे देगा। ओके, so duplicate rows are those with matching values for each expression in the select list. Okay, what is use of in operator in SQL? SQL के in operator का यूज क्या है? So in is the conditional operator used in where clause, where clause में यूज होता है। It is shorthand of multiple or conditional statements. ये एक shorthand है multiple or conditional statement का। आपको कुछ याद में नहीं रखना, बाकी का सब भूल जाओ आप। इन ऑपरेटर कैसे है, where clause में यूज होता है। अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस एक साथ यूज करनी है तो इन ऑपरेटर यूज होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एम्प्लॉय टेबल में आपको ऐसे रिकॉर्ड फेच कर रहे हैं जिसका नाम अमित भी है और जिसका नाम अभिजीत भी है, तो आप कैसे करोगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू अमित और एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू अभिजीत, ऐसे करोगे आप, राइट। सो यहाँ पे वैसे नहीं करना, आपको इन ऑपरेटर यूज करना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर एम्प्लॉय नेम इन अमित, कॉमा देना है और अभिजीत करना है, बस हो गया। इट इज शॉर्ट हैंड ऑफ मल्टीपल और कंडीशन, मल्टीपल और कंडीशन का शॉर्ट हैंड है, वेयर क्लॉज में यूज होता है। ओके, what is group by statement used for? Group by statement that divides the result for particular query in the group of rows. It is often used in aggregate functions such as sum, average, max, mean and count. ग्रुप बाय स्टेटमेंट क्या करता है, एक रिजल्ट है समझो, वो ग्रुप में डिवाइड कर देता है। समझो आपको ऐसा 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 डेटा चाहिए जिसमें डिपार्टमेंट वाइज आपको ग्रुपिज्म चाहिए, तो आप क्या करोगे, ग्रुप बाय क्लॉज यूज करोगे और उसके साथ आप ये एग्रीगेट फंक्शंस भी यूज कर सकते हो। एग्रीगेट फंक्शंस मतलब क्या, इट द सिलेक्ट स्टेटमेंट रिटर्न्स वन रो फॉर ईच ग्रुप, ओके, एंड व्हिच कैलकुलेट द इंफॉर्मेशन ऑफ अबाउट ईच ग्रुप। ये एग्रीगेट फंक्शन क्या करते हैं, ईच एंड एवरी ग्रुप जो आपने क्रिएट किया है, समझो डिपार्टमेंट टेबल है, उसका सम चाहिए आपको। समझो एक एम्प्लॉय टेबल है, उसमें 3 डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड एचआर डिपार्टमेंट, और आपको काउंट ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, आईटी डिपार्टमेंट में कितने काम करते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितने काम करते हैं और एचआर डिपार्टमेंट में कितने काम करते हैं। तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट count star from employees group by, और select count employee name from employees group by department name, ऐसे करोगे तो डिपार्टमेंट नेम आईटी फाइनेंस और ये आएगा और उसका काउंट आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज डेटाबेस ट्रांजैक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है जो बिजनेस एनालिस्ट को पूछा जाता है। ट्रांजैक्शन इज अ सिंगल लॉजिकल और एटॉमिक यूनिट ऑफ वर्क in which a sequence of operations or none must be executed. Transaction has defined beginning and the end. You can commit and roll back the transaction. तो ट्रांजैक्शन ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस है। मैं एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ, आपको समझ में आएगा। आप जब जाते हो एटीएम में, एटीएम में आप पैसा निकालते हो, कार्ड स्वाइप करते हो, पासवर्ड वगैरह डालते हो और पैसा निकालते हो, तो वह आपका बैलेंस सबसे पहले दिख जाता है आपका। समझो आपके अकाउंट में बैलेंस है $1000, अपने $100 निकाल दिए, $900 आपका अभी बैलेंस रहना चाहिए। वंस यू आपने जब $100 निकाल दिए तो $900 रहने चाहिए।
तो वो जो बैलेंस है, वो जो पूरा ये एक है, वो ट्रांजैक्शन अपडेट है। वो क्या करेगा, अपडेट करेगा रिकॉर्ड, और बैलेंस दिखाएगा, जहां पे 1000 था वहां पे 900 करेगा। दैट इज अपडेट ट्रांजैक्शन, दैट इज वन डेटाबेस ट्रांजैक्शन एट द बैक एंड लेवल। ओके, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेगेशन ऑपरेटर इन एसक्यूएल? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रेशर्स को भी पूछा जाता है, बिजनेस एनालिस्ट को भी पूछा जाता है। negation operators are operators which are negation condition like not condition, not condition जैसी कंडीशन रहती है उसको negation operator कहते हैं। not operator is negation operator which reverses the meaning of logical operator. The not operator is used before logical operator like not in, not exist, not in, not exist, इसमें not operator यूज होता है। एग्जाम्पल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज और स्टूडेंट वेयर नेम नॉट इन अमित। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम जो अमित रहेगा वो फेच नहीं करेगा रिकॉर्ड, बाकी के सब रिकॉर्ड्स वो फेच करेगा। दैट इज नेगेशन ऑपरेटर, नॉट इन, नॉट एग्जिस्ट। ओके, व्हाट आर स्केलर एसक्यूएल स्केलर फंक्शंस? हमने एग्रीगेट फंक्शंस देखा पिछले एक क्वेश्चन में, अभी स्केलर फंक्शंस देखते हैं। एसक्यूएल स्केलर फंक्शंस आर द फंक्शंस whose input range is one dimensional which returns the single output of each row। जो रिटर्न करेगा सिंगल आउटपुट ऑफ ईच रो का सिंगल आउटपुट वो रिटर्न करेगा। एसक्यूएल स्केलर फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ एवरी रो व्हिच वी आर यूज्ड टू क्वेरी, यूज इन क्वेरी टू प्रोसेस। ओके, जो आउटपुट है हम वो प्रोसेसिंग के लिए यूज करेंगे। जैसे कि समझो एक मैंने एक एग्जांपल दिया था, अमित अमित और एक्स वाई जेड है, वो सब लोअर केस में है, वो सब आपको अपर केस में देखना चाहते हो। सिलेक्ट यू केस स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ऐसे करोगे तो वो पूरा रिकॉर्ड अपर केस में आ जाएगा। Just like that, there are few scalar functions. U case converts the field in uppercase. L case converts the field in lowercase. Substring extract the character from the text or text field. Text field से कुछ characters चाहिए तुझे, आपको समझो एक कॉलम है, उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम साथ में स्टोर किया है, तो उसमें से सिर्फ आपको फर्स्ट नेम चाहिए, तो आप सबस्ट्रिंग यूज करोगे। लेंथ फंक्शन और लेंथ फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट फील्ड। राउंड फंक्शन राउंड्स द न्यूमेरिक फील्ड टू द नंबर ऑफ द डेसिमल स्पेसिफाइड। Next question, what is mean by DDL? DDL stands for data definition language. Following are DDL statements: create, alter, drop। CAD, CAD, ये याद रखो, CAD, CAD याद रखना है आपको। C मतलब create, A मतलब alter and D मतलब drop। C, create, creates a new table, view or view of table or any object in the database। Alter modifies the existing table or existing database object in the table। Drop deletes the entire table, a view or table or the object specified in the database। Okay, create, alter, drop। Tell us about SQL joins। ये भी important question है, बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा ही जाता है ये joins, और बिजनेस एनालिस्ट को भी joins पूछा जाता है। Join is nothing but connecting two tables to fetch the records from two or more different tables। Okay, join मतलब क्या है, दो या ज्यादा टेबल में अगर एक रिलेशन रिलेशनल टेबल में, नॉट सिंपल टेबल्स, रिलेशनल टेबल में अगर दो टेबल से जिसमें रिलेशन नहीं है उसमें आप ज्वाइन लगाना चाहते तो वो नहीं होगा। आपको कुछ ना कुछ रिलेशन रहना चाहिए, जैसे रेफरेंस की प्राइमरी की रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ कॉमन कॉलम्स रहने चाहिए, ये रहना कॉमन कॉलम्स कॉमन रहने चाहिए, या यू हैव टू हैव some condition to connect that tables related to each other। ओके, तो अगर रिलेशन नहीं है तो वो क्रॉस जॉइन बन जाएगा सबका, जहां पे एक सब रिकॉर्ड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, ये कार्टेशियन जॉइन बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो these are types of joins। One is inner join, outer join, then left outer join, right outer join, full outer join and cross join। inner join में क्या रहता है, जो सिमिलर रिकॉर्ड से वो फेच करता है दो टेबल्स में से। outer join में क्या रहता है, दो टाइप से, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन। लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या रहेगा, लेफ्ट टेबल का कॉमन डेटा ले लेगा वो, फेच फेच करेगा, और राइट टेबल का अनकॉमन रिकॉर्ड्स ले लेगा वो। ठीक है, मतलब समझो लेफ्ट टेबल में 1 2 3 स्टोर किया है, राइट टेबल में 1 2 स्टोर किया है। लेफ्ट आउटर जॉइन का रिजल्ट क्या आएगा, 1 2। ओके, दैट आर कॉमन रिकॉर्ड्स, 3 नहीं आएगा, 1 2 इज द आउटपुट।
वही राइट आउटर जॉइन में क्या आएगा, 1 2, समझो 1 2, लेफ्ट लेफ्ट टेबल में 1 2 है और राइट टेबल में 1 2 3 है समझो, तो क्या आ जाएगा, रिकॉर्ड लेफ्ट राइट टेबल की कॉमन 1 2 और लेफ्ट टेबल का एक, वन लेफ्ट टेबल का अनकॉमन 1 2 3, समझो लेफ्ट टेबल में 1 2 3 है, तो 1 2 और 3 ये रहेगा राइट आउटर जॉइन का सेम रिजल्ट, सेम कॉलम का मैं बोल रहा हूँ। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना आपको, फिर से मैं समझाता हूँ। जैसे कि लेफ्ट टेबल में 1 2 3 रिकॉर्ड्स है समझो, और राइट टेबल में है 1 2 रिकॉर्ड्स। लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या रहता है, कॉमन रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल, 1 1 सिमिलर रिकॉर्ड्स 1 आएगा, 2 2 सिमिलर रिकॉर्ड्स आएगा, और राइट और और कैसे आएगा वो, fetch the data from left table, common records from left and right table। ओके, सो ये सिंपल है, लेफ्ट आउटर जो है कॉमन रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल, अनकॉमन रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट टेबल। ओके, राइट आउटर जो है कॉमन रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट टेबल, अनकॉमन रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल। ओके, वहां पे 3 आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा राइट आउटर जॉइन में। फुल आउटर जॉइन में पेज द डेटा फ्रॉम बोथ टेबल्स, कॉमन रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स। एंड क्रॉस जॉइन में क्या आता है, ईच एंड एवरी रिकॉर्ड इज कनेक्टेड टू ईच अदर। सो क्रॉस जॉइन मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, हर एक रिकॉर्ड से कनेक्ट होगा, 1 2 3 1 2 ऐसे आ जाएगा, जो मैंने एग्जांपल बताया उसका रिजल्ट्स। Okay, what are different set operators? Set operators are nothing but the operators which are used to connect two tables to fetch the record of two tables. Set operators मतलब क्या है, दो टेबल्स का डेटाबेस कनेक्ट, जैसे कि जॉइन से वैसा ही है, वो रिकॉर्ड फेच करेगा दो टेबल्स में से। उसमें भी एक कंडीशन रहेगी आपकी, आपके टेबल के कॉलम सिमिलर रहना चाहिए और उसके डेटा टाइप सिमिलर रहना चाहिए। कॉलम के नाम नहीं बोल रहा मैं, डेटा टाइप नाम भी सिमिलर रहना चाहिए, सॉरी कॉलम का नाम भी सिमिलर रहना चाहिए और डेटा टाइप भी सिमिलर रहना चाहिए उसमें। सो देर आर 4 सेट ऑपरेटर्स, यूनियन, यूनियन और इंटरसेक्ट एंड माइनस। ओके, समझा। व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे इंटरव्यूज में। एसिड आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन, ए फॉर ऑटोमेसिटी, then consistency, isolation and durability, acid properties ensures the completeness of a transactions perform। ऑटोमेसिटी मतलब क्या, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ है कि नहीं, अगर वो फेल होता है या अबॉर्ट होता है, तो पहला जो जो है ट्रांजैक्शन वो रोल बैक होना चाहिए। समझो आप एटीएम में गए, आपने 100 रुपए निकाल दिए या $100 निकाल दिए एटीएम से। ओके, तो अगर पैसे ही नहीं आए तो क्या होता है, एक दो 5 मिनट जाने के बाद वो ट्रांजैक्शन रिवर्सल हो जाता है और आपके पैसे वापस आ जाते हैं, राइट। सो वही है, उसको ऑटोमेसिटी बोलते हैं। टू इंश्योर दैट, दैट इज ऑटोमेसिटी। कंसिस्टेंसी इंश्योर्स दैट द चेंजेस मेड थ्रू सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन आर रिफ्लेक्टेड प्रॉपर्ली ऑन द डेटाबेस। सो अगर आपने 100 रुपए निकाल दिए तो आपका बैलेंस 1000 की जगह 900 रहना चाहिए, दैट इज कंसिस्टेंसी, दैट इंश्योरिंग दैट इज कंसिस्टेंसी। Isolation ensures the transactions are performed independently and changes made by one transaction are not reflected by others। समझो आपने 100 रुपए निकाल दिए तो आपके अकाउंट से 100 रुपए निकलने चाहिए ना, वो दूसरे अकाउंट से निकले तो वो दैट इज अ प्रॉब्लम। दैट इज कॉल्ड एज आइसोलेशन। सो ensures the transaction happen independently, independent transaction happen होना चाहिए, independent transaction रहना चाहिए, perform होना चाहिए। Okay, durability ensures the changes made in the database with committed transaction persist as it is even after system failure। Okay, समझो सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा आपका बैंक का, तो आपका बैलेंस तो चला नहीं जाता ना कहीं पे, वो वैसे ही रहता है डेटाबेस में, राइट। दैट इज कॉल्ड एज ड्यूरेबिलिटी। व्हाट इज सेल्फ जॉइन, सेल्फ जॉइन इज द क्वेरी दैट जॉइंस अ टेबल इटसेल्फ। खुद से एक एक टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है समझो, एम्प्लॉय टेबल को सेम टेबल से ज्वाइन करना मतलब, और सब रिजल्ट्स आपको चाहिए सेम टेबल से ज्वाइन करके रिजल्ट्स चाहिए, तो वो उसको बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। उसमें एक एलियस एलियस कंसेप्ट यूज करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय एक टेबल दो टेबल करके कंसिडर करेंगे हम, एम्प्लॉय ए
ए एलियास रहेगा एम्प्लॉय का, उसमें से कौन सा कॉलम चाहिए, और एम्प्लॉय बी बी एलियास रहेगा, उसमें से कौन से कॉलम चाहिए, वो करके आप कंडीशन दे सकते हो ए डॉट एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू बी डॉट एम्प्लॉय नंबर, अगर एम्प्लॉय नंबर सेम है या मैनेजर नंबर सेम है, वैसा वैसा कर, उसको बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन, खुद से ज्वाइन करना टेबल को। What is view in SQL? View is virtual table consist of subset of a data from the table. It is virtual table. View का मतलब है virtual table. Content of the view is defined by the query. View takes up a little space because it does not copy all the data from given table, but only a subset of a data as defined by the view. Note that view can also display the combination of data, more tables. Views also hide the complexity of large data instead of narrow in all areas of interest. Okay, so view मतलब क्या है, एक वर्चुअल टेबल है, आपको समझो किसी ने रिपोर्ट मांगा जिसमें डेटा फेच होता है 2 या 3 टेबल से, और आप वो स्टोर नहीं करना चाहते डेटाबेस में, तो आप एक क्रिएट व्यू करके एक व्यू क्रिएट कर दो, उसमें से डेटा फेच कर दो, एक्सेल में कॉपी कर दो और उसको दे दो जो चाहिए। व्यू के 2 टाइप रहते हैं, एक सिंपल व्यू रहता है वो सिंगल टेबल पे चलता है, और एक कॉम्प्लेक्स व्यू रहता है जो मल्टीपल टेबल्स यूज करके, मल्टीपल कंडीशंस यूज करके किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज व्यू। सो ये मैंने 14 क्वेश्चंस दिए हैं, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस एनालिस्ट के लिए, क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट व्यू का भी यूज कर सकते हैं, कभी सिलेक्ट स्टेटमेंट, अल्टर स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं, और इट्स ऑलवेज गुड फॉर बिजनेस एनालिस्ट टू हैव एसक्यूएल नॉलेज। सो आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है, आपको आपके कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बता देना। अगर आपको ये इंटरव्यू क्वेश्चंस और इससे भी ज्यादा इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको चाहिए, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में आपका मेल आईडी दे देना। नहीं तो और एक है complexsql@gmail.com, complexsql@gmail.com, इस पे मेरे को मेल कर देना कि भाई मुझे ये क्वेश्चन चाहिए, मैंने ये चैनल सब्सक्राइब किया है, मैं आपको ये क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा पूरे। ओके, थैंक्स फॉर स्टेइंग टिल लास्ट फॉर दिस वीडियो, एंड cheers.